નમસ્કાર મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ધરતી। મંતવ્ય ન્યૂઝની આજે વિશેષ રજૂઆતમાં આપણે જોઈશું કે નાની ઉંમરમાં મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે દેશની 13 વર્ષીય બાળકીએ એક પુસ્તક લખ્યું છે, તેની પર આજે ચર્ચા કરીશું। હાલમાં જ દ્રૌપદી મુર્મુ દેશના 15મા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે, તો દ્રૌપદી મુર્મુ દેશના પ્રથમ આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ પણ છે। ત્યારે તેઓ ખૂબ સંઘર્ષ કરીને રાષ્ટ્રપતિ પદ સુધી પહોંચ્યા છે। ત્યારે સુરતની માત્ર 13 વર્ષની દીકરીએ દ્રૌપદી મુર્મુ પર એક પુસ્તક લખ્યું છે। 13 વર્ષીય ભાવિકા મહેશ્વરીએ તેમના જીવન કથન પર અને કઈ રીતે રાષ્ટ્રપદ સુધી પહોંચ્યા તે વિશે તેના પુસ્તકમાં વર્ણન કર્યું છે। 13 વર્ષીય ભાવિકાને પુસ્તકો વાંચવાનો ખૂબ શોખ છે। તેને દ્રૌપદી મુર્મુના જીવન વિશેની જાણવાની જિજ્ઞાસા હતી, પણ તેને ક્યાંથી પણ દ્રૌપદી મુર્મુ વિશે વધુ માહિતી મળી કે પછી કોઈ પુસ્તક પણ નહીં મળતા, તો તેણે દ્રૌપદી મુર્મુના જીવન પર પુસ્તક લખવાનો વિચાર કર્યો અને તેના આ કાર્યમાં તેના માતા પિતા એ સાથ આપ્યો અને આ માત્ર 15 દિવસની અંદર જ તેણે આ પુસ્તક લખીને તૈયાર કર્યું છે। ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ પર આ પ્રથમ પુસ્તક છે અને હવે આ પુસ્તક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અને ઉડિયા ભાષામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે। नमस्ते, मेरा नाम भाविका माहेश्वरी। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी, सूरत, गुजरात। तो अभी रिसेंटली हमने यह बुक लिखी है द्रौपदी मुर्मू जी पर, संघर्ष से शिखर तक। तो ये बुक लिखने का आइडिया हमें ऐसे आया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ। तो जब हम दिल्ली में गए थे अवार्ड फंक्शन के लिए, एज ए अवार्डी गई थी, तो वहाँ पे हम राष्ट्रपति भवन भी जाकर आए। राष्ट्रपति भवन हम एकदम अंदर से हम देख कर आए, बहुत सुंदर था। जहाँ राष्ट्रपति जी सोते हैं, जो इनका रूम है, उस रूम के बाहर तक हम जाके आए। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो जब हम वहाँ उस टाइम पापा ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए चुनी गई हैं, और जब पापा ने इनकी स्टोरी बताई, सो रियली मैं इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुई। और इनकी स्टोरी ऐसी है कि इनकी स्टोरी से कोई भी इंस्पायर होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। तो इनकी स्टोरी बताई तो हम दरियागंज गए, कोई इनके बारे में बुक मिल जाए, पर हमें कोई बुक नहीं मिली। फिर हमने गूगल पे, अमेजोन पे सर्च किया कि इनके बारे में कोई बुक मिल जाए, तो कोई बुक नहीं मिली। तब हमारे मन में ये थॉट आया कि जिस से मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है इनके, तो जब ये जीत जाएंगे, जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो और कितने सारे जनों को क्यूरियोसिटी होगी। तो ये सब थॉट्स को लेकर हमने यह द्रौपदी मुर्मू जी पर बुक लिखी है, और यह बुक हमने 15 डेज में लिखी है। और इस बुक को हम 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश करेंगे। इंग्लिश, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, क्योंकि हम गुजरात से, और 4th लैंग्वेज उड़िया लैंग्वेज, उड़ीसा की लैंग्वेज, क्योंकि मुर्मू जी उड़ीसा से हैं। और रियली इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर है। तो ये सब थॉट को लेकर हमने द्रौपदी मुर्मू जी पर यह बुक लिखी है। નાની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર 13 વર્ષીય ભાવિકાને દેશના લોકો ખૂબ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, તો તેણે માત્ર 15 દિવસમાં જ પુસ્તક લખીને તૈયાર કર્યું છે। હિન્દી, અંગ્રેજી અને ઉડિયા ભાષામાં આ પુસ્તકને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે। તો આ પુસ્તક દ્રૌપદી મુર્મુ પર લખાયેલું છે। તો હાલમાં જ દ્રૌપદી મુર્મુ એ દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે। તો દ્રૌપદી મુર્મુ એ દેશના પ્રથમ આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ પણ છે। ત્યારે તેઓ ખૂબ સંઘર્ષ કરીને રાષ્ટ્રપતિ પદ સુધી પહોંચ્યા છે। ત્યારે 13 વર્ષીય દીકરીએ આ પુસ્તક લખ્યું છે। 13 વર્ષીય ભાવિકા માહેશ્વરીએ તેમના જીવન કથન પર કઈ રીતે રાષ્ટ્રપતિ પદ સુધી પહોંચ્યા તેનું તેના પુસ્તકમાં વર્ણન કર્યું છે। તો 13 વર્ષીય ભાવિકાને પુસ્તક વાંચવાનો પણ ખૂબ શોખ છે। તેને હાલમાં જ 15 દિવસ પહેલા જ એવોર્ડ રાષ્ટ્રપતિ ભવનની પણ મુલાકાત લીધી હતી। આ દરમિયાન દ્રૌપદી મુર્મુના નામ રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર માટે સર્વોચ્ચ બોલાઈ રહ્યું હતું, જે અંગે તેને જાણ્યું હતું અને તેને આ પુસ્તક સ્પીડ પોસ્ટ અને ટ્વિટરના માધ્યમથી સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર્જીને મોકલ્યું હતું અને સમર્થન માટેની તેને અપીલ પણ કરી હતી। તો પુસ્તક સાથેઓ પણ તેણે સંદેશ મોકલ્યો હતો કે આપ દ્રૌપદી મુર્મુને મત આપી આદિવાસી સમાજ અને મહિલાઓનું સન્માન કરી દેશ સમક્ષ એક દાખલો બેસાડો।
તો આટલી નાની ઉંમરે તેને મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. સુરતની 13 વર્ષીય ભાવિકાએ એક પુસ્તક લખ્યું છે. તેને દ્રૌપદી મુર્મુ પર પુસ્તક લખ્યું છે. તો ભાવિ મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુ પર તેના દ્વારા પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. તો સુરતની માત્ર 13 વર્ષની દીકરી રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ પર પુસ્તક લખ્યું છે. તો આ પુસ્તક માત્ર 15 દિવસમાં લખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું. માત્ર 15 દિવસમાં જ આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું હતું. તો આ અલગ અલગ ભાષાઓમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. તો દ્રૌપદી મુર્મુ પર લખાયેલું આ પ્રથમ પુસ્તક છે, જેને 13 વર્ષીય ભાવિકા દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક હિન્દી, અંગ્રેજી અને ઉડિયા ભાષામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. અલગ અલગ ભાષાઓમાં પુસ્તકને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. તો માત્ર 15 દિવસમાં જ દ્રૌપદી મુર્મુ પર પુસ્તક લખવામાં આવ્યું. તો દ્રૌપદી મુર્મુ પર લખાયેલું આ પ્રથમ પુસ્તક છે. તેને અલગ અલગ ભાષાઓમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, જેમ કે હિન્દી, અંગ્રેજી અને ઉડિયા ભાષામાં તેને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. ભાવિ મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુ પર પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. માત્ર 15 દિવસમાં જ આ પુસ્તક લખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તો 13 વર્ષની ભાવિકા માહેશ્વરી નામની બાળકી આ પુસ્તક લખ્યું છે. તો દ્રૌપદી મુર્મુ પર આ લખાયેલું પ્રથમ પુસ્તક છે. હિન્દી, અંગ્રેજી અને ઉડિયા ભાષામાં આ પુસ્તકને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. તો દ્રૌપદી મુર્મુ પર લખાયેલું આ પ્રથમ પુસ્તક છે. દ્રૌપદી મુર્મુ દેશના પ્રથમ આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ બનવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેઓ ખૂબ જ સંઘર્ષ કરીને રાષ્ટ્રપતિ પદ સુધી પહોંચ્યા. તે અંગે સુરતની 13 વર્ષીય ભાવિકાએ પુસ્તક લખ્યું છે. ભાવિ મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુ પર એક પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. તો આ પુસ્તક માત્ર 15 દિવસની અંદર જ લખવામાં આવ્યું છે. નાની ઉંમરે આટલી મોટી સિद्धि प्राप्त करनार अपने साथ भाविका महेश्वरी जुड़ाए गया है. जी भाविका, मंतव्य न्यूज में आपका स्वागत है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बुक लिखी, तो आपको ये बुक लिखने का ख्याल कहाँ से आया और आपके किस किस ने इसमें मदद की? जी, अभी हम कुछ दिनों पहले दिल्ली में गए थे. तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ. तो कुछ दिनों पहले हम दिल्ली में गए थे अवार्ड फंक्शन में. वहाँ पे हमें अवार्ड मिला था फॉर द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल ओरेटर. तो उस टाइम ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि हम वहाँ पर हम वहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन है, हम राष्ट्रपति भवन में भी जाकर आए, जहाँ राष्ट्रपति जी सोते हैं उस रूम के बाहर तक हम जाकर आए. एंड रियली इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर. फिर जब हम राष्ट्रपति भवन में घूम रहे थे, फिर जब हम बाहर आए, तब पापा ने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताया. पापा ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनी गई हैं. तो उनकी स्टोरी रियली बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी. तो मैंने उनके बारे में और ढूंढने की कोशिश की. दिल्ली में दरियागंज है, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिलती है. वो एक बुक्स का खजाना है वहाँ पे. तो फिर हम वहाँ गए, हमने ढूंढी कि कोई हमें बुक मिल जाए द्रौपदी मुर्मू जी पर हमें कोई भी बुक नहीं मिली द्रौपदी मुर्मू जी पर. तब हमारे मन में ये बात आई कि जिस तरीके से हमें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इन्होंने क्या किया, तो जब ये जीत जाएंगी और अब ये जीत भी चुके हैं, तो तब कितने लोगों को क्यूरियोसिटी होगी. तो ये सब विचारों को लेकर हमने द्रौपदी मुर्मू जी पर यह किताब लिखी है, संघर्ष से शिखर तक. और इस किताब में मेरे पापा ने बहुत हेल्प की है. और ये बुक हमने लगभग 15 डेज में लिखी है. और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि ये बुक हम 4 लैंग्वेजेस में पब्लिश करेंगे. एक हिंदी, एक इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, एक गुजराती क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, और एक उड़िया लैंग्वेज में क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से है. और जी भाविका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इससे पहले भी कोई किताब लिखी है, जैसे कि कोई स्टोरी या कविता कुछ लिखा है आपने ऐसा कुछ, और लिखा है तो किस विषय पर लिखा है? जी हाँ जी, इससे पहले मैंने एक बुक लिखी है. वो बुक है
इट इज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, यानी ये बच्चों के लिए बुक है। आज के बच्चे कल का भविष्य। तो ये बुक में हमने बच्चों के बारे में बातें लिखी है कि वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्यों अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने लिखी है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं कथा भी करती हूँ। जब से लॉकडाउन आया तब से मैंने कथा करनी शुरू की और कथा के द्वारा 52 लाख रुपीज़ यानी 52 लाख रुपए हमने द्रौपदी मुर्मू जी हमने जो राम मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर अभी बन रहा है, वहाँ पे हमने एज अ समर्पण निधि दी है। तो जी भाविका, आप कितने साल की थी जब आपने बुक लिखना रिकॉर्ड का भी अटेम्प्ट किया जिसमें आई एम क्वालिफाइड। जी भाविका, आप कितने साल की थी जब आपने बुक लिखना शुरू किया था? जी हाँ, जब मैं 11 ईयर या 12 ईयर्स में मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी थी। जी, आपने हेलो जी भाविका, मैं आपसे हेलो? पूछना चाहूंगी कि आपने जो द्रौपदी मुर्मू पे किताब लिखी है उसको लिखने में हेलो? आपको किसने मदद की? जी जी, उसको लिखने में मुझे पापा ने बहुत हेल्प की है। और ये बुक है ना, उनकी बायोग्राफी नहीं है, ये बुक है जिसमें हमने उनके संघर्षों के बारे में लिखा है, जिसमें हमने ये भी लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी से हमें क्या सीख मिल सकती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि द्रौपदी मुर्मू जी जो एक आदिवासी महिला है और आज वे राष्ट्रपति बन रही हैं, तो वो पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बन रही है। तो और भी कितने सारे लोग इनसे इंस्पायर होंगे और भी कितने सारे लोग सपना देखकर उसे हकीकत में बदलेंगे। जी भाविका, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब सोमवार के दिन द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली है तो वो राष्ट्रपति जाहिर होगी। पर उसके पहले, चुनाव से पहले जब पुस्तक आपने लिखी थी वो आपने किस किस को भेजी थी और क्यों भेजी थी? जी, हमने यह जो पुस्तक है इसे ट्वीट किया था ममता बनर्जी को, सोनिया गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, ऐसा लिखकर कि आप भी सपोर्ट करें। और ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जी तो वे तो एक लेडी है, अगर वे एक वुमेन हो के एक वुमेन को सपोर्ट करेंगी तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हमने ऐसा ट्वीट करके किया था। जी भाविका, आपने जो किताब लिखी है द्रौपदी मुर्मू पर, आपने उसमें किस बाबतों का समावेश किया हुआ है? एक बार फिर से जरा सवाल पूछिए। आपने जो द्रौपदी मुर्मू पर हेलो? किताब लिखी है उसमें आपने किस बारे में लिखा हुआ है? द्रौपदी के जीवन के बारे में, वो क्या करते थे, किस बारे में आपने लिखा हुआ है? जी, मैं उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगी कि उनके जीवन में जब उनके दो बेटे हैं, उनके दो बेटे थे, उनके हस्बैंड थे, पर उनकी कोई एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई थी। तो उनकी सिर्फ एक डॉटर थी, तो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए एज अ टीचर भी वर्क किया एंड वो डिप्रेशन में आ गए थे। तो उनका राजस्थान से भी कहते हैं कि गहरा नाता है। उनका राजस्थान से इसलिए गहरा नाता है कि वे डिप्रेशन में चली गई थी, फिर वे राजस्थान में जाती है, वहाँ पे जितनी ब्रह्म कुमारी जी होती है उनसे मिलती हैं, फिर वे उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। यानी इनकी लाइफ कोई ऐसी सिंपल नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे देश की 50% पॉपुलेशन विमेन है, तो कितनी सारी और विमेन इनसे इंस्पायर होकर अपना काम आगे बढ़ाएंगी। जिसे आप आज कितने सारे ब्रांड्स देखते हैं, लिज्जत पापड़, नायका, ये सब एक वुमेन स्टार्टअप है। तो विमेन को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे कुछ नहीं कर सकती, नहीं, वे बहुत कुछ कर सकती है। आज विमेन हर एक क्षेत्र में है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, कोई गेम्स का क्षेत्र हो या कुछ भी हो। तो अभी देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो विमेन भी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी भाविका, जैसे आपने बताया कि अभी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जहां देखो महिलाएं होती है, तो आपको बुक लिखनी थी, तो आपको द्रौपदी मुर्मू पे लिखने का कहां से आइडिया आया?
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम दिल्ली में गए थे अवार्ड फंक्शन के लिए, तो उस टाइम पापा, हम जब राष्ट्रपति भवन की हमारी यात्रा हुई, हमने राष्ट्रपति भवन देखा, तब पापा ने मुर्मू जी का स्टोरी बताई। और सच में मुर्मू जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। हम ये चाहते थे कि मुर्मू जी की यह जो कहानी है वो हर एक भारतीय तक पहुंचे, हर एक भारतीय को पता चले कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। मतलब उनका वो ऐसे ही नहीं, ये एक जर्नी है, दिस इज अ जर्नी फ्रॉम अ हर्ट टू अ राष्ट्रपति भवन। तो बहुत इनका स्ट्रगल वाली लाइफ है, तो इसलिए। जी भाविका, आपने जो किताब लिखी है उसमें आपने जिस चीज के बारे में लिखा है, आपको वो डिटेल्स कहाँ से मिली? जी, वो डिटेल्स हमने इंटरनेट से ली है, और हमने इस बुक में इसके साथ उनके लिए सीख भी लिखी है कि एज ए विमेन नारी सशक्तिकरण क्या है। तो ये सब चीज़ों के भी बारे में हमने बुक में लिखा है। और ये बुक हम जब अभी थोड़े दिनों में ही 3-4 दिनों में लॉन्च करने वाले हैं। जी भाविका, आप कितने समय से बुक लिखने की आप तैयारी कर रहे थे और आपने कितने दिनों में ये बुक खत्म की? ये बुक हमने केवल 15 डेज में लिखी है, तो जी 15 दिनों में, ऑलमोस्ट 15 दिनों में ये बुक हमारी रेडी हो गई है। जी भाविका, जैसे द्रौपदी मुर्मू देश के दूसरे महिला राष्ट्रपति बने और पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति जैसे बनने जा रहे, तो आपको इस बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं ऐसे देश से हूँ जहाँ पे एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति भवन जा सकती है। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को ताकि एक्सप्रेस कर पाऊँ। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि एक महिला जो आदिवासी है, सोचिए लाखों लड़कियाँ हैं, लाखों आदिवासी जो जन है वो इंस्पायर होंगे और उन्हें भी एक आशा मिलेगी कि हम भी सपना देख सकते हैं और उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। जी भाविका, जैसे कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, तो आप अपने भविष्य में आगे क्या करना चाहती हो? जी, मैं अपने भविष्य में आगे यही करना चाहती हूँ कि जो मैं अभी कर रही हूँ उसे कंसिस्टेंसी से आगे करती रहूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक स्पिरिचुअल ओरेटर कथा के द्वारा। जैसे आजकल पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेरी एज के जो बच्चे हैं वो स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म जो होती है स्पिरिचुअलिटी, उसे सोचते कि ये अच्छा नहीं है, वो भगवान जी की ज़्यादा पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का क्या अर्थ होता है। आज मैं स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब आपको बताना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विथ योर स्पिरिट, सो मीन्स यू आर स्पिरिचुअल। यानी अगर आप कोई भी काम स्पिरिट से कर रहे हैं अपने, तो आप स्पिरिचुअल है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग with your spirit, so you are spiritual, and also you have to do your faith in the God। यानी आपको फेथ भी रखनी होगी भगवान में विश्वास रखें, जरूर एक ना एक दिन आप कुछ बड़ा करेंगे। जी भाविका, आपने जो किताब लिखी है द्रौपदी मुर्मू पर, आप विस्तार में बता सकते हैं कि आपने किस उद्देश्य से लिखी और आपके कहने के पीछे जो द्रौपदी मुर्मू है, जैसे कि लड़कियां हर क्षेत्र में आ गए, तो जैसे द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो आगे लड़कियां उनसे क्या सीख ले सकती है, और आपने अपनी पुस्तक में कौन कौन सी बाबतों का समावेश किया हुआ है? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति बन रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे देश से हैं, हमारा इतना अच्छा देश है कि एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। यानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो कुछ ना कुछ हमें नई नई स्टोरीज चाहिए होती है। तो द्रौपदी मुर्मू जी की यह जो स्टोरी है, यह रियल लाइफ स्टोरी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो यानी रियलिटी वाली कहानी है, और हम भारतीय से लिंक भी हो पाएंगे। और जो लाखों बच्चे हैं, लाखों लड़कियां आई हैं, वो इनसे इंस्पायर होंगी, उन्हें भी एक आशा मिलेगी कि वो कुछ बड़ा कर सकती है, बड़ा बन सकती है।
जी, और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि यह जो बुक है, यह बुक जब हम सेल करेंगे तो उससे जितना भी अमाउंट हमारे पास आएगा वो सब अमाउंट हम द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों में देंगे। और जो आदिवासी बच्ची होते हैं, जो आदिवासी बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनकी पढ़ाई में ये सब हम देना चाहेंगे। जैसे मेरे पापा स्कूल चलाते हैं, हमारी सूरत में 15+ स्कूल्स हैं, तो हमारी स्कूल जामनपाड़ा में भी है जो आदिवासी एरिया है। वहाँ पे हमने देखा कि 10-10 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। यानी बच्चों की जब हमने लगन देखी हम बहुत खुश हुए। तो तभी हमारे मन में ये आइडिया आया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और राम रतन जी भूतरा RR ग्रुप के, जिन्होंने 1 लाख रुपीस दिए फॉर जो बच्चों की पढ़ाई है उनके लिए। तो बस ऐसे हो रहा है और ये सब अमाउंट हम द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों में देंगे ताकि जो भी आदिवासी बच्चे हैं वो सब अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि बच्चे ही, जो आज के बच्चे हैं वही हमारे कल का भविष्य है। और मैं बच्चों को, जैसे अगर मेरे जैसे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आई थिंक आजकल बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ही होते हैं, ज़्यादातर यूथ इंस्टाग्राम पे है। सो यू नो वो वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं। सो अगर एक वीडियो पे उनके 40,000 व्यू आ गए और अगले वीडियो पे ओनली 400 व्यू आए तो वो एकदम उदास हो जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप बस कर्म करते रहिए। मैं मेरा एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, भाविका माहेश्वरी करके मेरा अकाउंट है, तो रोज़ हम उस पर डालते हैं शॉर्ट रील। तो हम कभी ये नहीं देखते कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो जितने भी बच्चे हैं, आई वुड ओनली लाइक टू से कि प्लीज़ आप अपने व्यूज़ पर फोकस ना करें, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस करें कि आप और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करें। और एक और बात कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सो व्हेन विल सी दी द्रौपदी मुर्मू, तो ये बात हमें सच होती हुई नजर आती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्योंकि एक महिला जो झोपड़ी से है और आज वे राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो यानी इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। Only the thing is that you have to believe in yourself, you have the faith in yourself. So yeah. जी भाविका, Hello. મંતવ્ય ન્યૂઝ में जुड़ने के लिए आपका खूब खूब आभार। તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી યોજાઈ ગઈ અને હવે દ્રૌપદી મુર્મુ દેશના પ્રથમ આદિવાસી મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બનવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે 13 વર્ષની ભાવિકાએ તેમના પર એક પુસ્તક લખ્યું છે અને આ પુસ્તક તેને માત્ર 15 દિવસમાં જ લખ્યું છે। તો મંતવ્ય ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।